اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں حاضر ہوں کیڈٹ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ٹائم پاکستان میں ہول گلوب میں اسپیشلی ان پاکستان میں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کسی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لیں. اب فرسٹ ہم آتے ہیں کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن کیوں لیتے ہیں. فرسٹلی اگر ہم کیڈٹ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو کیڈٹ کالج کیا ہے. بیسکلی فرسٹ ورلڈ وار میں جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1999 تک، یعنی 1914 سے لے کے 1949 تک جو فرسٹ ورلڈ وار لڑی گئی، اس میں جب انہوں نے یہاں کے مقامی لوگ جو ہے لوکل پیپل جو انڈیا کے تھے، پاکستان جو آج کل ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یہاں کے لوگوں نے پارٹیسپیشن کی وار میں. تو آفٹر دیٹ انالیسس کے بعد یہ بات پہنچی کہ ان میں جو وار بیہیویئر ہے، جو بیہیویئر ہونی چاہیے وار کے لیے، جو کانفیڈنس ہے، ان کی کمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کسی اور کانٹیننٹ سے آ کے یہاں حکومت کرتے ہیں یا آپ کو لوگوں کی مقامی لوگوں کی ضرورت ہے، دین دیئر فور یو شوڈ اس کو کوئی دو گے، دین آپ ان لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو دیئر فور آفٹر فرسٹ ورلڈ وار جب اس کے بعد لیگ آف نیشن جب پیس ٹریٹی ہو گئی تو دین ان کی انٹرسٹ بڑھ گئی کہ جنوبی ایشیا سب کانٹیننٹ میں ایک کیڈٹ کالج ہو، اور کیڈٹ کالج کا فوکس جو ہے اسپیشلی دو چیزوں پہ ہو. نمبر فرسٹ جو ہے فزیکل اور ساتھ میں ایکیڈیمک. فزیکل اور ایکیڈیمک دونوں اسپیکٹس پہ ہو، یعنی فزیکلی بھی پریپیئر کرے دا ہیومن ریسورسز، دا لوکل ہیومن ریسورسز، فزیکلی اینڈ مینٹلی ٹو فیس دا چیلنجز. چونکہ وہ آلریڈی انہوں نے انالیسس کی تھی 1914 میں، تو اس بیس پہ فزیکل اور ایکیڈیمک چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو کیڈٹ کالج کی، اور فرسٹ کیڈٹ کالج جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کی. اور دیٹ کیڈٹ کالج واز ان دا پنجاب پروونس، دیٹ پنجاب پروونس جو کہ ابھی پارٹ ہے انڈین میں، جو ابھی انڈیا کا حصہ ہے. اور ہمارے جو پاکستان ہے کرنٹلی، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس میں پارٹیشن کے بعد یعنی آزادی کے بعد 1954 میں فرسٹ کیڈٹ کالج جو ہے وہ کیڈٹ کالج جو ہے اسٹیبلش ہوا پنجاب میں، حسن ابدال ڈسٹرکٹ اٹک میں، جس کو کیڈٹ کالج حسن ابدال کہتے ہیں، جو اس ٹائم پاکستان کا اولڈسٹ کیڈٹ کالج ہے. سملرلی ملٹری کیڈٹ کالج جو ملٹری انسٹیٹیوٹ تھا پہلے، اٹ واز ناٹ کیڈٹ کالج. جہلم میں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ملٹری کیڈٹ کالج جہلم. اسی طریقے سے لیٹر آن کیڈٹ کالج کوہاٹ، لیٹر آن جو ہے ڈفرینٹ کیڈٹ کالج جو بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب میں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی. تو کیڈٹ کالج کا مین فوکس جو ہے وہ فزیکل اور ایکیڈیمک ٹریننگ اور ایکیڈیمک پریپریشن پہ ہے، اور سچ ہیومن ریسورسز جو فزیکلی بھی فٹ ہو اور ایکیڈیمکلی بھی فٹ ہو ٹو فیس دا چیلنجز. تو اس کے لیے ہے. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیڈٹ کالج، جو بھی کیڈٹ کالج میں آپ ایڈمیشن لینا چاہے کیڈٹ کالج حسن ابدال ہو، ملٹری کیڈٹ کالج جہلم ہو، ملٹری کالج مری ہو، پی ایف سرگودا ہو، کیڈٹ کالج کوہاٹ، کیڈٹ کالج واٹسپ ہو، چاہے پیپلز کالج سندھ ہو، چاہے اسٹیل ملز کالج کیڈٹ کالج ہو، چاہے کیڈٹ کالج بلوچستان ہو، ایوری اینڈ ایوری ویئر دا فرسٹ کوشچن ارائز ہوتا ہے کس لیول پہ ہم لے سکتے ہیں. تو یہ جو لیول ہے وہ ہے 8th کلاس، یعنی 8ویں کلاس کے لیول پہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان کی کنڈکشن ہوتی ہے. اور جو اسٹوڈنٹ پاس ہو جاتے ہیں ان کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے کیڈٹ کالج میں، اور وہ وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا سلیبس کیا ہوتا ہے. چونکہ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میجورٹی آف دا پیرنٹس سوری ٹو سے کہ آج کل جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، اکیڈمیز کے نام پہ کرتے ہیں. سب لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے کتابیں پبلش کرتے ہیں گائیڈ کے نام سے. نو نیڈ آف گائیڈ، نو نیڈ آف سچ 3rd کلاس مٹیریل. جو ہے اکیڈیمکلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے 8 لیول کسی بھی ٹیکسٹ بک بورڈ، کیونکہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے باقاعدہ منسٹری آف ایجوکیشن، جو نیشنل منسٹری آف ایجوکیشن ہے، ان کے باقاعدہ کریکولم سے کے اکارڈنگلی وہ دیتے ہیں، چاہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہو، سندھ ٹیکسٹ بک ہو، کے پی ٹیکسٹ بک ہو، یا پنجاب یا بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہو. تو بیسیکلی جو ججمنٹ ہوتی ہیں، نمبر فرسٹ جو مین امپورٹنٹ ہے دیٹس انگلش. فرسٹ انگلش میں، سیکنڈ جو ہے میتھس ہے،
जो इस लेवल के मैथ्स, थर्ड जो है उर्दू, और फोर्थ जो है दैट्स बेसिकली जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में फिर जो है जजमेंट होती है जनरल नॉलेज में, आस्क्ड अबाउट साइंस, इसमें साइंस पाकिस्तान के बारे में, जिसको हम पाकिस्तान अफेयर्स कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में मालूमात कह सकते हैं, और इसके अलावा इस्लाम के बारे में, जिसको हम इस्लामिक एजुकेशन कहते हैं, और इनके बारे में इन करंट जो अफेयर्स है, जो करंट किस्म के लेवल, लेकिन इतने हाईएस्ट लेवल की नहीं है। तो आप अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप वालिद हैं, बीइंग वालिद, आपकी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे जो है कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फोकस होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो है उनके जो बेस है इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, जनरल नॉलेज में स्ट्रांग हो। यानी अगर आपके बच्चे जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश, अब बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश में बेसिक चीज़ जो है वो है टेंसेस, यानी तीनों टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उनमें से वो चेंज कर सकता हो नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, यानी सेंटेंस को आपस में कन्वर्जन, फिर उसके बाद ये है कि वो उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम 4th, 5th, 6th में सीखते हैं। तो उसी लेवल के मुताबिक फिर उसके बाद ये है कि थर्ड चीज़ जो है कॉम्प्रिहेंशन है, एक पैराग्राफ को पढ़ ले, अंडरस्टैंडिंग कर ले, देन एट द एंड ऑफ पैराग्राफ उनको ये पता हो कि पैराग्राफ में मुझसे क्या आस्क किया गया है। तो ये बेसिक चीज़ है, सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, जमा वाहिद जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद ये सम टाइम जो है बास कैडेट कॉलेज में जो है सेंटेंस देते हैं, तो उन सेंटेंस को इस्तेमाल करना मुख्तलिफ किस्म के, जिसको हम जुमलों में कहते हैं, वर्ड देते हैं, उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना। मैथ्स की जो बेसिक है, और वो बेसिक चीज़ जो है ऑपरेशन है, जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम है, ये ऑपरेशन है, साथ में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपली सेट है, इसके अलावा परसेंटेज है, इसके अलावा वॉल्यूम, एरिया, और बेसिक ऑफ द ज्योमेट्री जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि इसी 5th, 6th, 7th के लेवल पे हम पढ़ते हैं, उन्हीं चीज़ों में से रहते हैं। उर्दू है, उर्दू में भी वाहिद, जमा, मुतज़ाद अल्फाज जो है, मुज़क्किर, मुअन्नस है, और इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग, जो मुख्तलिफ किस्म के आपको चंद टॉपिक देते हैं, उन पे पैराग्राफ राइटिंग होती है, क्योंकि ये बेसिकली MCQ टाइप से, ये लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपली MCQ स्टाइल, या सम टाइम जो है आपको कुछ लाइन देते हैं, विद इन द लाइंस आप उसको जो है एक्सप्लेन करना होता है। फिर उसके बाद जब मैं जनरल नॉलेज की तरफ आता हूँ, तो जनरल नॉलेज में साइंस है, साइंस में बेसिक ऑफ साइंस, साइंस की जो बुनियादी मालूमात है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक डिफिनीशन जिसको हम कह सकते हैं, उनके बारे में। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडी में पाकिस्तान के हवाले से जो मालूमात है, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के हवाले से है, पाकिस्तान के रकबे के हवाले से है, पाकिस्तान किस कंटिनेंट में वाक़ है, ये वो इंफॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ एरियाज़, जोग्राफिकल सिंपल मालूमात होनी चाहिए, हमारे नेबर्स में कौन कौन सी कंट्रीज है, किस किस के साथ है, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। फिर करंट अफेयर में ये है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तीनों फोर्सेस, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो। इसके अलावा इन तीनों के जो जनरल हो, जो चीफ है, उनके नाम हो, उनका जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, उनके बारे में मालूमात हो। तो ये चीज़ें जो है, अगर आप इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, जनरल नॉलेज के बेसिक चीज़ों के बारे में इफ़ यू हैव इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव नॉलेज, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ वरी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका बआसानी किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है। क्योंकि आज की जो एक ग्रोइंग एक इंक्रीज हम देखते हैं सोसाइटी में, मेजॉरिटी पेरेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले, बिकॉज ऑफ रीज़न मैंने पहले बताई, फिजिकल ट्रेनिंग और साथ में जो एकेडमिक ट्रेनिंग है, इस वजह से इतनी एक्सीलेंसी है। अब अभी आप रिजल्ट उठा के किसी भी बोर्ड में, तो जिस बोर्ड में कैडेट कॉलेज होगा उनके स्टूडेंट जो है टॉप पोजीशन में, और कैडेट कॉलेज में दूसरी बात यह है कि क्वालिटेटिव वर्क होता है, यानी स्टूडेंट्स को क्वालिटी में लेते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं रहते हैं। क्वालिटी में स्टूडेंट्स उनका होते हैं, और उनके स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी ऑफ देम जो है फोर्सेज में जाते हैं, फिर डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो वो किसी न किसी गुड पोजीशन पे होते हैं। इस टाइम अगर हम देखते हैं तो रीज़न इज दैट कि वहाँ पे बाकायदा एक कॉन्फिडेंस होती है। वहाँ पे अगर आप देख ले, उनकी परसेंटेज देख ले, तो मेजॉरिटी ऑफ देम जो है
मोर देन 70 या 70% मार्क्स लेते हैं। द रीज़न इज दैट कि वहाँ पे बाकायदा एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है, बाकायदा उनको डिसिप्लिन सिखाई जाती है, एवरीथिंग विद इन एक स्कोप के अंदर है। तो इसलिए जो वाले दिन जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल हो, कोहाट हो, मिलिट्री कैडेट कॉलेज जेहलम हो, कैडेट कॉलेज मरी हो, किसी भी जगह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए चाहिए कि वो कोर्स सिलेबस की तैयारी अभी से करवाए, चाहे वो 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, क्योंकि इसी लेवल पे जो इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू और जनरल नॉलेज है, इन्हीं को चाहे करिकुलम आपका सिलेबस किसी भी का हो, आपने इसी लेवल पे तैयारी शुरू करनी है और तैयारी के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके लिए किसी थर्ड रेटेड मार्केट में जो मुख्तलिफ गाइड्स हैं उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपके लिए सहारा सिर्फ और सिर्फ वो बुक्स, चाहे किसी भी सीरीज के हो, चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक हो, KPK टेक्स्ट बुक हो, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक हो या सेंट टेक्स्ट बुक हो, जिस भी सीरीज की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक को लेके बेसिक ऑफ इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, जनरल नॉलेज आप सीख ले तो इंशाल्लाह इजीली कैडेट कॉलेज के एडमिशन टेस्ट को पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए किसी परेशानी और किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि मैं फ्रॉम लास्ट few years I am associated with the cadet college admission series test के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की ये होती है टेंशन कि हमारे बच्चे जो है वो हमने मुख्तलिफ एकेडमियों में डाला, मुख्तलिफ सेंटरों में डाला, उनके कोई रिजल्ट नहीं, बिकॉज मेन थिंग इज दैट कि बेसिक पे फोकस नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को कैडेट कॉलेज के लिए तैयार करेंगे, किस तरीके से बच्चों को, कि ये बच्चे जो हैं कैडेट कॉलेज के बाद ये कहाँ जाएंगे, इसके बाद ये ISSB में जाते हैं, ये फिर इसकी बाकायदा, क्योंकि ISSB के लिए एक जो पहले से जो एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ISSB के लिए पहले से जो एक मोटिवेशनल बैकग्राउंड है, तो दैट फिजिकल एंड दैट मोटिवेशनल बैकग्राउंड की प्रिपरेशन प्रॉपरली कैडेट कॉलेजेस में होती है। तो देयरफॉर अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब जिंदगी गुजारें, आप चाहते हैं किसी भी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देयरफॉर आपको मैं आज मशवरा देता हूं कि आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को किसी भी कैडेट कॉलेज में डलवाएं। और कैडेट कॉलेज में डलवाने के लिए किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वालिफाइड बंदे से आप रब्ता कर सकते हैं, किसी भी क्वालिफाइड बंदे को आप कर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो बेसिक चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो ये है जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताई, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इन्हीं सब्जेक्ट को करके आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर की ज़रूरत हो तो आप किसी क्वालिफाइड टीचर से रब्ता कर सकते हैं जो आपके बच्चे के इन सब्जेक्ट में मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं, उनमें बाकायदा तौर पर उनको प्रिपेयर कर ले और बाकायदा टेस्ट के जरिए से उनको प्रिपेयर करके उनको आगे की तरफ कैडेट कॉलेज में भेजे, तो इजीली ही कैन पास द एडमिशन टेस्ट को पास कर सकते हैं। एडमिशन तो इसको इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जिसके नाम पे बड़े बड़े कैडेट कॉलेज के एडमिशन टेस्ट के नाम पे बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े इदारे बने हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे लेके बटोर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं, बिकॉज दे हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर कैडेट कॉलेज। कैडेट कॉलेज टेस्ट कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं वही चीज़ें हैं, वही किताबें हैं, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको थोड़ा बहुत रियलाइज करें, क्योंकि बच्चे के लेवल पे साइकोलॉजिकली इस लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक ही टाइम में MCQ स्टाइल, एक ही टाइम में इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू और जनरल नॉलेज के पाकिस्तान, इस्लामियत वगैरह एक ही पेपर पे हो, तो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उस सर्विस को निकालने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। और तकरीबन जो मैं आपको टाइम बताता हूँ, टाइम ये है 3 मंथ्स, तकरीबन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने में बंदा जो है इजीली प्रिपेयर हो सकता है अपनी किताबों से, जो वो पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से इजीली उनकी प्रिपरेशन पॉसिबल है विद इन 3 मंथ्स। और दूसरी बात जो है ज़्यादातर वालिदैन की होती है कि किस महीने में, तो आमतौर पर कैडेट कॉलेज एडमिशन के लिए पाकिस्तान में अक्टूबर और नवंबर के महीने में टेस्ट होते हैं, ठीक है, अक्टूबर के महीना, और मेजॉरिटी कैडेट कॉलेज में अक्टूबर और सब में जो है नवंबर के महीने में एडमिशन का महीना है। और जो प्रॉस्पेक्टस है या एडमिशन की जो फॉर्म्स है वो तकरीबन जून जुलाई से स्टार्ट है, और एंड डेट जो है बिफोर 2 वीक्स, यानी अक्टूबर में या नवंबर में टेस्ट से 2 हफ्ते पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने का प्रोसीजर उनके हर कैडेट कॉलेज का डिफरेंट है, ताहम आप जहन में याद रखिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपने प्रिपेयर होना है। बिफोर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बच्चे को घर बैठा के किसी क्वालिफाइड टीचर से करके किसी एकेडमी में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड क्लास गाइड
की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हीं बच्चों की अपनी ही किताबों में बच्चों की प्रिपरेशन करवा दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चे इजीली कैडेट कॉलेज का टेस्ट पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैडेट कॉलेज के हवाले से कोई भी, अगर आपको कोई टेंशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह फील फ्री, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।